So this is Physics Chapter 2, Units and Measurement. So in this chapter, we started with measurement of length. In the measurement of length, we made two separate videos on measurement of large lengths and measurements of very small lengths, small distances. This is the third video, measurement of mass, and probably in this video, I will also cover measurement of time. So you can say the first three videos are for the first part of this chapter. This is just the first part of the chapter. The first part of the chapter is divided into three topics, three videos. That is measurement of large distances, measurement of very, very small distances, and measurement of mass and time and their numericals. After today's video, most probably, I'll be giving you your first homework. That is the homework based on the first part of the chapter. And then we'll move on with the next parts of the chapter. In the next coming parts of the chapter, we'll be covering dimension analysis, order of magnitude, errors, and that's all. That's what the chapter contains. So that is the fundamental of physics which we are starting with. The first chapter of physics I'm not even counting. That was just some boring theory which told you some, which gave you some basic information about what is physics. Not so important on the basis of you can say examination point of view or competitive exams, but very important if you want to understand physics on a deeper level. But whenever you go to deeper level of any subject, it becomes boring. Okay, so let's start with this part, measurement of mass. So in physics, the range of mass, which you see over here, the table on your screen, on the left side of your screen, that is the range of mass, the order of magnitude of the mass which we are going to consider in physics. It ranges from 10 raised to minus 30 kg of order of magnitude, that's mass of an electron, up to 10 raised to 55 kg, which is mass of the observable universe. So you can say that different quantities in physics has got different order of magnitude of masses, which we are going to deal with. Right from electron, that is subatomic particles, atomic particles, you can say dust particles, dew drops, water droplets, uh, the particles of the masses of the particles which are life size, human sized, and then the particles of heavenly bodies. So we are going to deal with all the masses of such particles in our study of physics in coming 2 years, that is in 11th and 12th. Now the SI unit of measurement of mass is kilograms, and prototypes of the international standard kilograms are developed in International Bureau of Weights and Measures in Paris, and they are the original prototypes are kept there in the laboratory in Paris, but the you can say the similar kind of prototypes, or you can say the duplicates of such prototypes. Duplicates is not like unofficial duplicates. Those are official duplicates of prototypes. They are kept in all the countries of the world. In India, they are kept in National Physical Laboratory, NPL, in New Delhi. So mass is the quantity which we measure with the help of the unit kilogram. So mass can be balanced by, can be measured by a very common instrument in our day-to-day life, that is common balance, physical balance, beam balance, right? Which we see in several shops, from vegetable vendors to grocery to, you can say, jewelers. They all have these kind of balances which measure mass in kilograms. Mass spectrograph is used to measure mass of atomic and subatomic charged particles. So that's a very special kind of method plus instrument. They both are used. So this instrument also takes help of a lot of calculations, which measures the mass of subatomic charged particles. When a charged particle is projected uh,
inside uniform magnetic field, it follows a circular path. The radius of trajectory followed by such charged particles in electromagnetic field is proportional to the mass of that particle. So according to the radius, we'll come to know that what can be the mass. We can predict the mass of the charged particles. And so by measuring the radius of trajectory for a given speed of particles, we can estimate the mass of these particles. So we can understand that direct measurement of mass is not possible for such small particles. Even for large particles, we cannot, like heavenly bodies, the masses cannot be measured directly. So we have developed indirect method for measuring masses of very small and very large particles. For example, time period of revolution of a planet around sun depends on the mass of the sun, and we can estimate the mass of sun by using time periods of planets. Similarly, the estimate of mass of the planet can be done with the help of time period of the moon orbiting or any other object orbiting the planet, right? So that is some information regarding mass. Now some examples. There is not many, you can say, theoretical aspects which are related with mass. Like length, we had so many things to understand. Parallactic method and some more indirect method for measuring very large and very small lengths. For mass it is very straightforward. It is a very small, you can say, topic. Let's do the first example. Let's see what is it. Mass of an electron is given. How many electrons will weigh 2 kg? So this is very simple. You can use unitary method. So one electron weighs 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. So how many electrons will weigh 2 kg? That is 2 upon 9.11 into 10 raised to minus 31. Please calculate this. So just do 2 upon 9.11 separately and write 10 raised to 31 over here, right? And just calculate this and get the answer. You can pause the video and do it now. Okay, so I hope that you have done the calculation. 2 divided by 9.11. Let's check what is your answer. My answer comes out to be 0.22 rounded off into 10 raised to 31. That is 2.2 multiplied by 10 raised to 30, 30, correct. So these many electrons must be there to in the weight of 2 kg. Let's check whether our answer is correct or not. Absolutely correct. Let's move ahead. Density of a neutron star. Oh, okay. Density of a neutron star is 2.7 into 10 raised to 17 kilogram per meter cube. So density 2.7 into 10 raised to 17. 2.7 into 10 raised to 17 kg per meter cube. Assume the star to be spherical. Calculate the radius of neutron star if its mass is twice the mass of the sun. Okay, so we have to assume that this neutron star is spherical, and the radius of this neutron star we have to find the radius, and they have given that the mass of this neutron star is twice the mass of the sun. Okay, great. So mass is equal to 2 times mass of sun, which is 2 multiplied by 2 into 10 raised to 30 kg, which is 4 into 10 raised to 30. So we know the mass, we know the density, so we can find the volume. So density is equal to mass upon volume. Density is 2.7 into 10 raised to 17. Mass is 4 into 10 raised to 30 upon volume, we don't know. So volume is equal to 4 into 10 raised to 30 upon 2.7 into 10 raised to 17. So this will become 4 upon 2.7 multiplied by 10 raised to 30 divided by 10 raised to 17, which is 10 raised to 13. Okay, so I just want you to do the calculation so that we can go ahead. Pause the video, do the calculation, and confirm the answer for the volume. Then we will find the radius. So 4 divided by 2.7. Okay, so this is 1.4
1.48 approximately. This is 1.48 into 10 raised to 3 meter, 10 raised to 13 meter cube. This is the volume of that neutron star. Now volume is equal to 4 by 3 pi r cube. This is the formula for volume of a sphere. So we are assuming that the star is spherical, right? That's why we have taken this formula. So 1.48 into 10 raised to 13 is equal to 4 by 3 into pi, which is we can take it as 3.14 into r cube. So r cube will be equal to 1.48 into 10 raised to 13 multiplied by 3 multiplied by nothing divided by 4 into 3.14. So please pause the video and do the calculation. I will calculate on my end. So if you're wondering how I'm doing the calculation, I'm using a calculator. But if you ask me that should you also use calculator, it is not permitted. It is not allowed in examination. So if you want to use now, it is your wish. So your concept is getting clear. You know the method now. You're understanding the method. But if you ask me that in JEE, are they allowing calculator? No. In boards, are they allowing calculator? No. So you just think and then you do whatever you want. Now you're not small children, okay? I'm not going to dictate कि तुम्हें ये करो ये करो ये करो. तुम्हें जैसे करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको याद रख के करो, ठीक है? सो 1.48 मुझे कोई एग्जाम नहीं देनी है तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा ही, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है, राइट? सो आई गॉट 4.44. 1.48 into 3 is 4.44. अच्छा, 4.44 को मैं पहले डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मुझे मिला 1.11. डिनोमिनेटर में 4 है, और फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3.14 से, तो मुझे मिला 0.3535 और 0.35. r cube will be 0.35 into 10 raised to 13. अब इसका मुझे लेना पड़ेगा क्यूब रूट, ठीक है? जब मैं क्यूब रूट लेता हूं तो रिमेंबर हाउ विल आई राइट इट. अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? लेट मी शो यू ओवर हियर. सो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.35. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3.5 इंटू 10 रेज टू cube root of 3.5 into 10 raised to 12. So r is equal to cube root of 3.5 multiplied by cube root of 10 raised to 12. ठीक है? So r is equal to cube root of 3.5 multiplied by 10 raised to 12 raised to 1 by 3. ये इजी हो जाएगा ना मेरे लिए. अब 3.5 का क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट 3.5 का अगर तुम्हें लेना है तो तुम एक एस्टिमेशन वाली मेथड वो यूज कर सकते हो, या फिर इसका एक दूसरा तरीका है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द टेबल, दैट इज योर लॉगरिथमिक टेबल जो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं एग्जाम में. उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लॉगरिथमिक टेबल यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्यूब रूट होता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो तुम एस्टिमेशन वाली मेथड जो तुमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, या फिर तुम यूट्यूब पे सीख सकते हो फिर से, उससे तुम क्यूब रूट निकाल सकते हो, ठीक है? सो 3.5 का क्यूब रूट मतलब जस्ट मोमेंट, रेज टू तो इसका क्यूब रूट आता है 1.5152. देखते हैं 1.52 का जो क्यूब है वो 3.5 आता है कि नहीं. आई एम नॉट श्योर बिकॉज 1.53 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आई डोंट नो कितना आएगा. सो 1.5 raised to 3. Yes, it is approximately 3.375.
तो इसका जो आंसर है 1.52 है, अराउंड 1.52, अप्रोक्सीमेटली 1.52। ठीक है, वो मुझे सही लग रहा है। सो 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12, और ये 3 कट हो जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा। सिर्फ क्यूब रूट कैसे निकालना एक बार देख लो, ये मीटर 1.25 इंटू 10⁻4 मीटर, ये उसकी रेडियस है। लेट्स चेक के आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, 1.52 इंटू 10⁻4 मीटर, 1.52 into 10⁻4 मीटर, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम पे आ चुके हैं हम लोग। सो देयर आर मेनी नेचुरल पीरियोडिक फिनोमेना टेकिंग प्लेस अराउंड अस। ऐसे कोई नेचुरल पीरियोडिक फिनोमेना के बारे में तुम कुछ सोच सकते हो अभी? डे एंड नाइट हो सकता है, सीजन्स हो सकता है जो यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी। और क्या हो सकता है? सीजन्स क्यों होता है? सीजन्स होता है ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। डे एंड नाइट क्यों होता है? द रोटेशन ऑफ सन अराउंड द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये सारे पीरियोडिक फिनोमेना, पीरियोडिक मतलब दे टेक प्लेस आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो फिनोमेना है, इसकी वजह से हमें समझ में आता है कि टाइम पास हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, कुछ तो चीज है जो चेंज हो रही है। तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्लॉक्स और वॉचेस के थ्रू हम लोग टाइम का ट्रैक रखते हैं। क्लॉक्स और वॉचेस तो सिर्फ टाइम मतलब मोमेंटरी छोटे टाइम पीरियड का ट्रैक रखते हैं, बट देन कैलेंडर्स जो डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स का ट्रैक रखते हैं। ठीक है, बट हमने अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टाइम पीरियड्स को हम लोग नोट कर सकते हैं। The atomic standard of time is based on periodic electromagnetic vibrations produced in cesium atom. These cesium atom clocks are used in various countries to maintain national standard of time. तो हर एक कंट्री का एक नेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है, जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो एक सार्केज्म के फॉर्म में भी यूज करते हैं हम लोग, कि कोई भी लेट होता है तो इज रनिंग बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा बोला जाता है। In case of quartz wrist watch, we use small quartz crystal and watch is driven by the vibrations produced by quartz crystal. तुम्हारी वॉच पे या क्लॉक पे क्वार्ट्ज लिखा रहता है। ये क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज एक मिनरल है, उसका छोटा क्रिस्टल होता है जिसपे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ये क्वार्ट्ज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन तुम्हारी क्लॉक या वॉच को ड्राइव करता है। और ये वाइब्रेशंस का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो जो पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, उसी की वजह से क्लॉक टाइम पे चलती है। सिर्फ बैटरी लगा देने से क्लॉक टाइम पे नहीं चलेगी। डिजिटल क्लॉक्स आ गई है अभी डेफिनेटली, बट क्वार्ट्ज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट यू कैन से इन्वेंशन इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सीजियम क्लॉक्स में क्या होता है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय सीजियम एटम को नोट किया जाता है। तो सीजियम एटम क्लॉक में एक सेकंड का डेफिनेशन क्या होता है? It is the time interval needed to complete 9192631770 vibrations of the electromagnetic radiations corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom. बहुत complicated definitions है, बट ये वाइब्रेशंस इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके वाइब्रेशन के हेल्प से ही हम वो एक सेकंड के डिफरेंस को नोट कर सकते हैं, जिससे हमारी क्लॉक्स चलती है। सो ये क्लॉक्स बहुत एक्यूरेट और पोर्टेबल होती है, और हम इसको कहीं भी कोई भी कंट्री में उस कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो पहले भी मैंने मेंशन किया था दिल्ली में, उसमें भी ऐसी क्लॉक है, और जिससे हम लोग पूरे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करते हैं। और ये सारे अलग अलग स्टेट्स के स्टैंडर्ड क्लॉक से इसको मैच करके पहले के ज़माने में रेडियो के थ्रू, रेडियो में हमेशा एक टाइम बोला जाता था, तो रेडियो स्टेशंस को ये टाइम कौन बताता था? ये एनपीएल वाले बताते थे, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से जो टाइम अपडेट होता था वो रेडियो वाले एग्जैक्ट अपडेट करके अपनी क्लॉक्स में रखते थे, और अपनी क्लॉक्स के थ्रू वो पूरे इंडिया को बताते थे, सारे इंडिया वाले वही टाइम को फॉलो करते थे।
right? Indian Standard Time is linked to this set of atomic clocks. These atomic clocks are so accurate that they lose or gain not more than 3 microsecond in 1 year. एक साल में उसमें सिर्फ 3 माइक्रोसेकंड का गैप या फिर डिफरेंस आता है. माइक्रोसेकंड क्या होता है? 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू 10 रेज टू -6 सेकेंड. मतलब एक सेकेंड का 1 मिलियंथ ऑफ अ पार्ट. बहुत छोटा डिफरेंस है. तो मतलब एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा. In physics, we deal with wide range of time. Lifespan of most of unstable particle is found to be 10 raised to -24 second, which is such a small time period. And age of universe is 10 raised to 17 seconds. उसका order है. ठीक है. So remember that. अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ चीज बताई है. ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्योंकि हम लोग ने मास में भी पढ़ा था, टाइम में भी हम पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा टाइम, जो सबसे लंबा टाइम है वो यूनिवर्स की एज है, सबसे छोटा टाइम है वो अनस्टेबल पार्टिकल की लाइफ है, राइट? तो उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, 10 रेज टू -24 और 10 रेज टू 17. बट ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है? सो यहाँ पे लिखा है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ measured quantities required when we make comparison between them. दो क्वांटिटीज के बीच में जब जनरल कंपैरिजन करना है तो हम लोग वही स्पेसिफिक कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, जनरल कंपैरिजन. ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन करते हैं. तो कैसे करते हैं? फर्स्टली वी मेजर द मेजर्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन. जैसे कि एक नंबर है, सपोज एक नंबर है 35000000. अभी ये एक नंबर है, राइट? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो 3.5 इंटू 10 रेज टू कितने पॉइंट हमने डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 7 आ जाएगा. अगर ये नंबर ऐसा होता 0.0000000035, तो हम लोग फिर से ऐसे ही लिखते हैं 3.5 इंटू 10 रेज टू कितने पॉइंट डेसिमल को शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे -8 लिखते हैं. तो डेसिमल प्लेस जब भी राइट साइड में शिफ्ट होती तो ये नंबर की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, मतलब पावर में नेगेटिव साइन होगी. तो पावर में नेगेटिव साइन हुआ है मतलब वो नंबर बहुत छोटा है, क्वांटिटी उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, मैग्नीट्यूड छोटा है. और जब डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं और नंबर की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो ये जो पावर होगा उसमें पॉजिटिव नंबर होगा. पॉजिटिव नंबर वाले जो पावर होते हैं, 10 का पावर जब पॉजिटिव होता है तो नंबर एक्चुअली बहुत बड़ा है. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से नंबर बड़ा है या छोटा है, और कन्वीनियंटली और एक्यूरेट तरीके से हम नंबर को पहचान सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. तो हमेशा याद रखना कि साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है, पहले वाला नंबर जो मल्टीप्लिकेशन से पहले लिखते हैं, वो हमेशा 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए. और जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ नंबर. ठीक है. अच्छा, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाते हैं? ए क्या है? ये नंबर, ये वाला नंबर. ये वाला नंबर अगर √10 से बड़ा है, सॉरी √10 से छोटा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये पावर जितना ही हो जाएगा. बट अगर ये नंबर √10 से बड़ा है, मतलब 3.162 से बड़ा है ये नंबर ए मतलब ये वाला नंबर, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड करना पड़ेगा. ये तरीका है, एग्जैक्ट तरीका ये. ठीक है, तो यहां पे देखो, जैसे ये नंबर है 3.5 इंटू 10 रेज टू 7. इसमें ये जो नंबर है तुम्हारा, ये क्या है? 3.5. क्या है? 3.162 से बड़ा है या छोटा है? ऑफ कोर्स इट इज बिगर. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लोग 1 ऐड कर देंगे. सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 रेज टू 8. 10 रेज टू 8 या फिर जस्ट 8 और 8. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 8. यहां पे भी 3.5 है, 3.162 से बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? -8 + 1 मतलब -7. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, चलो. ये है रेंज ऑफ टाइम, जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स की रेंज के अकॉर्डिंगली इनको सेट किया गया है. लाइफ स्पैन ऑफ हिग्स पार्टिकल, हिग्स
एक सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम है। तुम बोलोगे सब एटॉमिक पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर अगर तुमने अच्छे से उसका लेक्चर बिना सोए हुए सुना है तो तुम्हें समझ जाएगा कि कुछ हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स भी होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर के पार्टिकल, उनका लाइफ स्पैन बताया, जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होते हैं और रिक्रिएट भी होते रहते हैं। फिर टाइम पीरियड ऑफ एक्स रेज, एटॉमिक वाइब्रेशन, लाइट वेव्स, टाइम पीरियड ऑफ रेडियो वेव, विंक ऑफ आई, टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट, सबको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिए है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से समझ जाता है कि कितना ज्यादा या कम टाइम है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, एवरेज ह्यूमन लाइफ, सेकेंड्स में दिया है ये सब, याद रखना सेकेंड्स है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेकेंड्स में, ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स तक दिया हुआ। कुछ फॉर्मूला भी हम यूज करने वाले आगे। फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये अभी नहीं आएगा, ये एरर पार्ट में ज्यादा दिखेगी डेफिनेशन, बट फिर भी नोट करना सही रहेगा। जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नोट किया हमने, वो टाइम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बार बार वो लोग जो मेंशन कर रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये पार्ट कंपैरेटिवली छोटा है, मास और टाइम वाला। वो लेंथ वाला, डिस्टेंस वाला पार्ट काफी बड़ा था और उसमें काफी कंफ्यूजिंग भी था वो, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस तो हमारे मैच भी नहीं हो रहे, बट कोई बात नहीं, ऐसे पार्ट्स आते जाते रहेंगे। ओवरऑल फिजिक्स का आइडिया लेना ज्यादा जरूरी है अभी, रादर देन छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करने से, क्योंकि वो डिटेल हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगी, आगे की चैप्टर से रिलेटेड होगी डिटेल, या फिर इस चैप्टर में ठीक से उसको नहीं बताया आगे बताएंगे, या फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको डिटेल में लेके गए हैं, तो ऐसा भी बहुत बार होता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने बोल रहे हैं वो लोग। 57 को हम लोग लिख सकते हैं 5.7, सॉरी अबाउट दैट, 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1। सही है, हमने डेसिमल प्लेस को लेफ्ट में शिफ्ट किया टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर आएगा 1। क्यों? क्योंकि 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया, ठीक है। तो 5.7 इंटू 10⁻1। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर है 5.7, जो 3.162, जो तुम्हारा √10 की वैल्यू है, 3.162 √10 की जो वैल्यू है, ठीक है। इससे ये नंबर 3.162 से बड़ा है। 5.7 इज ग्रेटर देन 3.162, ठीक है। अगर 5.7 3.162 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो ये जो पावर है उसको +1 से ऐड करोगे उतना रहेगा। Therefore order of magnitude is equal to 1 + 1, that is 2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम 2 लिखेंगे या 10⁻²। देखते हैं वो लोग ने कैसे लिखा है, तो वो लोग ने सिर्फ 2 लिखा है, ठीक है। तो वैसे सारे दूसरे नंबर है, अलग अलग नंबर है, तुम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हो। तो ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ढूंढो और मुझे बताओ, मतलब तुम अपने आप को बताओ, मुझे नहीं, अपने आप को बताओ। तो वीडियो पॉज करके प्लीज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ढूंढो, तुम्हारी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अभी के अभी, ठीक है। वीडियो पॉज करो एंड ढूंढो अभी, फिर हम आंसर से चेक करेंगे। आई होप तुमने वीडियो पॉज करके कर लिया है। लेट्स सी, लेट्स चेक, आंसर चेक करो अपने। वीडियो पॉज करके आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अ ह्यूमन हार्ट beats once in 0.8 seconds. How many times it will beat in the life of 70 years of a man? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ बीट्स एंड यहां पे रहेगा टाइम, ठीक है। 1 बीट होती है 0.8 सेकेंड्स में, तो कितनी बीट्स होगी 70 ईयर्स, एवरेज जो लाइफ स्पैन है ह्यूमंस का वो 70 ईयर्स, कितनी बीट्स होगी 70 ईयर्स में? तो 70 ईयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में लेके आते हैं। पहले तो ईयर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 365 हो जाएगा। 70 इंटू 3, इतने ही दिन है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए, याद रखो। 70 इंटू 365, उसमें भी कोरोना वोरोना हो गया तो खत्म फिर मामला,
70 इंटू 360, तो डेज में हो गया कन्वर्ट। अब डेज को कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अब आवर्स को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में, तो इंटू 3600। ये हो गई, इतनी सेकेंड्स है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए। तो कितने बीट्स होते हैं? तो 70 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, इतनी बार तुम्हारा हार्ट बीट करेगा अगर 70 ईयर्स तक पहुंच पाए तो। प्लीज वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो जैसे भी करना है, और आंसर चेक करो। डन, चेक करो आंसर। 2.76 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स तुम्हारा हार्ट बीट करता है पूरी लाइफ में, अगर 70 ईयर्स तक जिए तो, ऑन एन एवरेज। ज्यादा जिए तो ज्यादा बीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two atomic clocks are allowed to run for 100 years and they differ by 0.1 second only. What will be the accuracy of the standard atomic clock in measuring 1 second? Very nice यार, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 ईयर्स में जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड का है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं टाइम लेता हूं 100 ईयर्स, that is the time considered, time कंसिडर करेंगे तो 100 ईयर्स, ठीक है। और डिफरेंस इन टाइम कितना? 0.1 सेकेंड। तो 100 ईयर्स में अगर 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड का डिफरेंस आता है, तो 1 सेकेंड मेजर करने में कितना डिफरेंस है? तो पहले तो 100 ईयर्स में कितनी सेकेंड होती है वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1 सेकेंड अपॉन 100 ईयर्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। 100 इंटू 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600। इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें बहुत ही छोटा नंबर मिलेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव में हो। तो वो छोटा नंबर होगा तुम्हारा एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन मेजरिंग 1 सेकेंड। मतलब सिर्फ उतना डिफरेंस होगा 1 सेकेंड मेजर करने में। प्लीज पॉज करो, इसकी वैल्यू ढूंढो। डन, लेट्स चेक। तो तुम्हारा आंसर इससे कुछ मैच करना चाहिए। 0.32 इंटू 10⁻⁻10। इन्होंने क्या बोला है? एक्यूरेसी शोन बाय एटॉमिक क्लॉक इज 0.32 इंटू 10⁻10 पार्ट इन 1 सेकेंड। बिल्कुल सही, राइट। वो ये जो डेल्टा टी बाई टी वाला फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम वाला जो फॉर्मूला मैंने बोला था ना लिखने के लिए, वही यूज किया। हमने यूनिटरी मेथड से किया है, कोई फर्क नहीं, राइट। चलो आगे चलते हैं। द एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में ये क्वेश्चन है। द एज ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट 10⁻10 years, whereas the mean life for human existence is 10⁻6 years. Find the physical meaning of the time interval which is approximately halfway between these two on a logarithmic scale. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे लॉगरिथम्स का भी यूज है। तो लॉगरिथम्स अभी हमने डिटेल में पढ़ा नहीं, सीबीएसई के बच्चों को तो लॉगरिथम्स का कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो हमको इसका सोल्यूशन देख के समझना पड़ेगा, रादर देन आई एक्सप्लेन यू। अगर उसमें कुछ ऐसा कंटेंट रहेगा जो अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसको हमें स्किप भी करना पड़ सकता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग लॉगरिथम इसके क्वेश्चन पे जाना सही नहीं है। सो लॉगरिथम कब पढ़ेंगे ये भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा। लॉगरिथम्स हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स जब करेंगे तब पढ़ेंगे, और वो भी मैं प्रॉपरली डिजाइन कर रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, क्योंकि उसमें कैलकुलस को भी हमें पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले। तो ये लोग ने बोला है कि यूनिवर्स का जो एज है वो इतने ईयर्स है, और मीन लाइफ फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज दीज मेनी ईयर्स। To find the physical meaning of the time interval which is approximately halfway between these two on a logarithmic scale.
क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. लेट्स लुक एट द आंसर, सोल्यूशन कैसे लिखा है वो लोग ने. सो मीन लाइफ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को वो लोग ने टाइम T1 लिया है और मीन लाइफ ऑफ यूनिवर्स को टाइम T2 लिया है, ईयर्स में ही रखा है. सो टाइम इंटरवल विच इज हाफ वे बिटवीन T1 एंड T2. अच्छा, तो वो लोग ने क्या किया है, T1 और T2 का लॉग लेके ऐड कर दिया है और फिर उसका एवरेज निकाला है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. सो लॉग ऑफ 10⁻6 प्लस लॉग ऑफ 10⁻10. बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लॉग क्या है, तो अभी तो इतना ही समझो कि लॉगरिथम एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, इंडाइसिस से. ये लोग ने इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली 6 + 10 लिख के आंसर निकाला है 10, आंसर निकाला है 8. अब ये 8 को, 8 क्या है पता है, तुम्हारा पावर है. सो टाइम इंटरवल फॉर लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार इज ऑल्सो 10⁸ ईयर्स. सो हमारे अर्थ के एग्जिस्टेंस पे और ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना एक लाइट को नियरेस्ट स्टार से हमारे तक पहुंचने में लगता है. अब बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, तो आई एम नॉट सेइंग दैट तुम्हें ये अभी समझ में आएगा, बट डेफिनेटली लॉग के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो यस, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट. फाइनली वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. अब इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो मैं तुम्हें आज असाइन करूंगा, और तो वीडियोस देखो, ये तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ था दोनों, और आज मेजरमेंट ऑफ मास और टाइम भी किया हमने, आज का छोटा है वीडियो. सो ये तीनों वीडियो देखने के बाद ये एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.